So we covered chapter number 4 as a matter of fact, which is the rat trap. But before that, there is one more chapter which was left out, which I left for making it to be covered later on. So today we are going to cover that, right? The name of this one is Deep Water. Okay? And this is written by W.O. Douglas or William Orville. William O-R-I-V-I-L-L-E D-O-U-G-L-A-S Douglas. Right? So I'll just read to you the summary of the chapter, right? And then after that we will continue reading with the text from the book. Alright? So shall we? Okay. So in this story, the poet, the writer Douglas talks about his fear of water and how he finally overcomes it with strong willpower, courage, hard work and firm determination. ठीक है? So what is the story about? Fear of water and how the narrator comes over it. Alright? So and he overcomes it with these things are very important. Willpower, number 1, courage, number 2, hard work, number 3, and firm determination. Right? If you want to write, you can write as well. This is very important. Otherwise, you can pause the video and you can note it down. Right? So, willpower, courage, hard work, and firm determination. So once he took the courage and then the fear vanished. एक बार जो उन्होंने कोशिश करी, हिम्मत दिखाई, तो वो डर ऑटोमेटिकली गायब हो गया, वैनिश हो गया. And that shows most of fears are baseless. और यही हमें बताता है, इसी से हमें ये पता लगता है कि दरअसल में जो लोग घबराते हैं, डरते हैं, इससे डर है, उससे डर है, फियर है, वो फियर सारा का सारा बेसलेस होता है. ठीक है? सो that shows that most fear are baseless and fear creates dangers where there is more. Okay? So the writer experiences further and confronts the proverbial truth, where there is a will, there is a way. ठीक है? जहां चाह है वहां राह है. इस चीज को मानते हुए हमारे जो राइटर हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और इस स्टोरी में इसी चीज को
कंटिन्यू किया गया है, शो किया गया है। ठीक है, सो there are some characters. Number one is Douglas, who is our narrator, the writer of the story. Number two is the Yakima, which is a city in US, and there in US there is a YMCA swimming pool, right? Young Men Christians Association, you must have seen. It's a worldwide, very big organization, right? Which are there always to help the people in needy, almost like a semi-government or a government concern. ठीक है, तो उनका पूरे कॉलेजेस, पूरे हॉस्टल्स और स्विमिंग पूल्स वगैरह बने होते हैं। तो ये उन्हीं के स्विमिंग पूल, और कहाँ की कहानी है? दिस इज द स्टोरी ऑफ याकीमा। Yakima is what? Yakima is a city in US. ठीक है? So the story Deep Water tells us how the writer overcome his fear of water and learned swimming with sheer determination and willpower. ठीक है? He had developed of terror in his heart since childhood when he was only 3 years old and he had gone to California. He might be 3 or 4 with his father. जब वो 3 या 4 साल के थे तो अपने फादर के साथ में कैलिफोर्निया गए थे, जहां पर इनके अंदर ये पानी के प्रति डर बैठ गया, डेवलप हो गया। कुछ ऐसा एक इंसिडेंट, एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से वो डर इनके मन में बैठ गया। One day on the beach, क्या हुआ? The waves knocked the child down and swept over him. ये लोग बीच पर खेल रहे थे, समुद्र के किनारे बीच होता है, बीच यू ऑल नो। तो बीच पर ये लोग खेल रहे थे, एक बड़ी सी लहर आई और इस छोटे से 3-4 साल के बच्चे को वॉश कर ले गई। The child was terrified, but the father who knew there was no harm laughed. बच्चा बेचारा डर गया, धड़स गया एकदम से, लेकिन फादर हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें कोई नुकसान की, इसमें कोई घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है। तो इसलिए वो उसे समझा रहे थे, बता रहे थे कि देयर इज नथिंग टू फियर अबाउट एंड दैट इज व्हाई ही वाज लाफिंग, क्योंकि उन्हें लगा कि ये बड़ी एक मजाक वाली बात है कि अरे छोटा बच्चा गिर गया, कोई बात नहीं, उठ जाओ। ही वाज लाइक काइंड ऑफ, ही टुक इट वेरी कैजुअली। द एक्सपीरियंस ब्रेड, उस एक्सपीरियंस से क्या ब्रीड हो गया? ब्रीड का पास्ट टेंस ब्रेड। उस एक्सपीरियंस से उनके अंदर क्या चीज बन गई, डेवलप कर गई? अ परमानेंट फियर ऑफ वाटर इन द चाइल्ड सबकॉन्शियस माइंड। स्टिल अनदर इंसिडेंट मोर सीरियस इंक्रीज हिज टेरर। एक और हादसा हो गया। ये कुछ हादसे, कुछ इंसिडेंट्स ही ऐसे हो जाते हैं कि जो कि उस चीज की आप कह लीजिए कि फियर को और ज्यादा बढ़ा देता है। दूसरे वाले हादसे में क्या हो गया? वन डे व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर अदर बॉयज, अ बिग बॉय सडनली प्लेड अ डेंजर प्रैंक एंड पुश्ड हिम इनटू द वाटर। एक दिन स्विमिंग पूल, YMCA के ही स्विमिंग पूल में, याकीमा में, ये लोग बैठे हुए थे, स्विमिंग सीखना चाह रहे थे। द राइटर वाज ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग, स्विमिंग सीखने की कोशिश कर रहे थे, और एक बड़े लड़के ने, उन्हीं के किसी दोस्त के ग्रुप में से किसी बड़े लड़के ने एज अ मस्ती मजाक के चलते उन्हें पुश कर दिया पानी में। एंड द राइटर वाज टेरिबली फ्राइटेंड, और वो इतना डर गए, इतना घबरा गए, ही वेंट डाउन 9 फीट इनटू वाटर। तकरीबन 9 फीट का स्विमिंग पूल, बहुत बड़ा वाला, काफी डीप वाला रहा होगा, तो वो उसमें एकदम बिल्कुल नीचे तक पहुंच गए। एंड when he reached the bottom, he jumped upward with all his strength. He came up but very slowly. और उन्होंने ऊपर आने की कोशिश करी, जंप करने की कोशिश करी, वो थोड़ा बहुत तो ऊपर आया लेकिन बहुत धीमे। He tried to catch hold of something like a rope but grasped only at water. उनको कुछ दिखा और उन्होंने पकड़ने की कोशिश करी कि कुछ रस्सी, कुछ कोई चीज वो पकड़ लें, लेकिन जो चीज वो पकड़ पाए वो सिर्फ पानी ही था। कोई रस्सी या कोई ऐसी चीज उनके हाथ में ना आ सकी। He tried to shout but no sound came out. वो चिल्लाने की कोशिश करी, लेकिन जो ही उन्होंने मुंह खोला तो उनके
मुंह के अंदर सारा का सारा पानी घुस गया। He went down again, his lungs ached, उनके लंग्स में खिंचाव बढ़ने लगा, दर्द बढ़ने लगा। His head throbbed, उनका दिमाग चकराने लगा। And he grew dizzy, और उनको बिल्कुल चक्कर सा फील होने लगा। And he felt paralyzed with fear, और ऐसा लगा कि वो अपने हाथ पैर नहीं चला पा रहे, ऐसा लगा कि वो पैरालाइज्ड, राइट, पैरालिसिस, यू नो, बॉडी का एक हिस्सा बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। और इनको यहाँ पर डर के मारे ऐसा लगा कि इनकी पूरी की पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई, कुछ काम करना बंद कर दी। ऑल हिज लिम्स वर पैरालाइज्ड, ओनली द मूवमेंट ऑफ हिज हार्ट टोल्ड हिम दैट ही वाज अलाइव। सिर्फ दिल की धड़कन धक 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 चल रही थी, जिससे इनको ये एहसास हो रहा था कि थोड़ी बहुत सांसें अभी बची हुई हैं, अदरवाइज तो ही वॉज गॉन, ऑलमोस्ट गॉन। Again he tried to jump up, but this time his limbs would not move at all. फिर से उन्होंने उछलने की कोशिश करी, लेकिन काफी देर तक पड़े पड़े वो उनके लिम्स वहीं के वहीं रहे, हिले भी नहीं अपनी जगह से। And he looked for ropes, ladders and water wings, but all in vain. Then he went down again the third time, and this time all efforts and fear ceased. He was moving towards peaceful death. फिर से उन्होंने एक बार कोशिश करी, फिर से एक बार कोशिश करी, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था, और ऐसा लगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मौत की तरफ, डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं। द राइटर वॉज इन पीस, देन ही केम इनटू द कॉन्शियसनेस। ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन द साइड ऑफ द पूल विद द अदर बॉयज नियर बाय, एंड द टेरर दैट ही हैड एक्सपीरियंस इन द पूल नेवर लेफ्ट हिम। अगले ही क्षण जो उन्हें याद था कि वो पूल के किनारे पड़े हुए थे, कुछ लड़के बैठ करके उनके पैर चला रहे थे, कुछ लोग उनके चेस्ट को, स्टमक को पुश कर रहे थे कि पानी बाहर आए, और तब जब उन्हें होश आया तो उन्होंने ऐसा देखा, और वो डर इस कदर उनके अंदर घर कर गया, इस कदर उनके अंदर वो डर बैठ गया कि वो बेचारे एकदम कभी उस डर की वजह से पानी से बहुत दूर भागने लगे, स्विमिंग पूल से तो बिल्कुल सपने में भी पूल देख करके घबराने लगे, इतना परेशान हो गए। इट हॉन्टेड हिम फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टू कम, उन्हें डराता रहा वो डर। इट स्पॉइल्ड मेनी ऑफ हिज एक्सपेडिशंस ऑफ कैनोइंग, वो कुछ अपने जो कैनोइंग मतलब एक कैनोपी टाइप की एक बोट होती है जिससे वो राफ्टिंग की तरह बोट रेस करी जाती है, तो उसकी वजह से उनका वो डर खत्म हो गया। अपने दोस्तों के साथ कहीं पर ट्रिप पे घूमने फिरने जाते थे तो वो डर बैठ गया, वो डर की वजह से खराब हो गया। स्विमिंग करना मन कोई सवाल ही नहीं है, छोटे स्विमिंग पूल में भी जाना उन्होंने छोड़ दिया, और फिशिंग विशिंग करना भी छोड़ दिया, मतलब पानी की हर वो चीज पे उन्हें बहुत बहुत डर बन गया, डर बैठ गया। He took help of a swimming instructor to learn swimming, and the instructor taught him various actions necessary in swimming part by part. He put his face under water and exhaled and inhaled in, raising above water. उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट किया कि वो उन्हें कम से कम कुछ स्विमिंग सिखाए। इतने सालों बाद वो अडिक्ट थे। He was determined. His willpower was very strong. He gathered some courage, and with the hard work and firm determination, he thought कि भाई he will have to learn swimming no matter what. उन्हें सीखनी ही है स्विमिंग, चाहे जो भी करना पड़े। तो पानी के अंदर सांस छोड़ना, फिर बाहर सांस लेना, बाहर से इनहेल करना, और पानी के अंदर जाके एक्सहेल करना, ये सारी चीजें उनके स्विमिंग इंस्ट्रक्टर्स उन्हें सिखा रहे थे। एंड ऑल द वेरियस एक्शंस की हाथ कैसे चलाएं, पैर कैसे चलाएं, स्टार्टिंग में जिसको हम फ्लोटिंग कहते हैं, वो फ्लोटिंग कैसे करी जाए। एंड द इंस्ट्रक्टर वाज टीचिंग हिम ईच एंड एवरीथिंग। ही पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल्ड एंड इनहेल्ड इन रेजिंग अबव वाटर। ही प्रैक्टिस्ड इट फॉर सेवरल वीक्स। ही हैड टू किक विद हिज लेग्स अ फ्यू वीक्स ऑन द साइड ऑफ द पूल। पूल के किनारे पे बैठ करके रेलिंग पकड़ के, कभी आप लोगों ने देखा होगा छप 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 ऐसे पीछे पैर चलाने की, ऐसे 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 फिश की तरह पैर चलाने के मूवमेंट सिखाए जाते हैं। सो डीप गोज आवर चाइल्डहुड एक्सपेरिमेंट्स एंड आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, सो फियरफुल इज द फियर ऑफ फियर। तो सबसे ज्यादा डरावनी क्या चीज है? जो डर का डर है, डर का जो डर है वही सबसे ज्यादा डरावना होता है। दरअसल में अगर आप देखें तो डर के डर से डरावनी कोई चीज नहीं होती। अगर आप देखिए कि आप भूत है या पानी है तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी वो जो फीलिंग है, उस फीलिंग का जो डर है, दैट इज सपोज टू बी द मोस्ट
disturbing one. ठीक है? So whenever he was in water, the terror returned. जब भी वो पानी में उतरते थे, वो डर, वो खतरा, वो पुरानी उनकी यादें, वो सब एक साथ बन के वापस आ जाता था. And henceforward the writer tried to terrorize terror itself. और फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि आज मैं इस डर को ही डरा करके रहूंगा. Julius Caesar में नहीं था, one of my favorite and most famous dialogues. Danger knows himself well that Caesar is more dangerous. Danger खुद जानता है कि मैं उससे कहीं ज्यादा डेंजरस हूं. उसी तरह इन्होंने कहा कि आज ये जो टेरर है, आज इस टेरर को मैं हरा के ही रहूंगा. And henceforward the writer tried to terrorize terror itself. He tried to face the new challenge. When the terror came, he confronted it by asking it sarcastically as to what it can really do to him. उन्होंने खड़े होकर के कहा कि तुम आए हो मुझे डराने, चलो आज देख लेते हैं कि तुम मुझे कितना डरा सकते हो. मैं तो नहीं डरने वाला, तुम डरा लो, लगा लो जितना जोर लगाना है, और हम यहीं खड़े रहेंगे. So he decided to do that. He plunged into the water as if to defy the fear. Once he took courage, the terror vanquished. और उन्होंने आओ देखा ना ताओ और झट स्विमिंग पूल में छलांग मार दी, सिर्फ उस डर को भगाने के लिए. और सच्चाई में क्या हुआ? सचमुच में वो डर वैनिश हो गया, गायब हो गया. And he faced the challenge deliberately in various places like the warm lake. He conquered it at लास्ट. आखिर में उन्होंने डर के ऊपर काबू, डर के ऊपर कब्जा, डर के ऊपर विजय प्राप्त कर ही ली. और इतनी सी ये है स्टोरी. ठीक है, तो टेक्स्ट के साथ हम लोग बिगिन कर रहे हैं. कोशिश करते हैं. हाउ मच दिस इज लाइक 1 2 3 4 5 and 6 maybe. Okay. So 3.5 pages we'll cover today, 3.5 pages in the next session, so that कि ये आपका वीडियो इतना ज्यादा लंबा नहीं रहे. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों की कन्वीनियंस की वजह से इसे इतना लंबा नहीं बना रहा हूँ, 2 पार्ट में स्प्लिट कर दे रहा हूँ. अदरवाइज आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. ठीक है, विद इन इट विल टेक सम टाइम, मे बी 1 hour 20 minutes, बट वी आर गोइंग टू फिनिश इट. बट आपके लिए वो थोड़ा सा ओवर हो जाएगा. इसी को आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या किया जाए. So, okay, notice these words and expressions in the text, infer their meaning from the context. ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें आएगी और हमें उससे मैच करना है कि उसका मीनिंग क्या है. ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स हैं. So it had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered. So इन्होंने कह दिया कि भाई मुझे ये स्विमिंग पूल का फियर है और मुझे ओवरकम करना है. और हम देखते हैं कि क्या हमारे भाग्य में है. YMCA यंग मैन क्रिश्चियंस एसोसिएशन का एक स्विमिंग पूल था जो कि एग्जैक्टली ही ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा था, एंड जिसकी वजह से हमें जो स्विमिंग सीखने का क्रेज था और स्विमिंग सीखने की जो तमन्ना थी वो आसानी से पूरी होती दिख रही थी. द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, बहुत ही खतरनाक नदी थी. एंड मदर कंटिन्यूअली वार्न्ड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर. याकीमा रिवर की बहुत सारी कहानियां थी और मेरी माता श्री मुझे बताती रहती थी कि आज एक बच्चा और डूब गया, आज एक औरत और डूब गई नदी में, आज ये डूब गए, आज वो डूब गए, और वो डर हमेशा कंटिन्यूअसली चलता रहता था. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन वो नदी नहीं थी, YMCA का स्विमिंग पूल था, तो वो मेरे हिसाब से बहुत सेफ था. और इसलिए मैंने कहा कि यार पूल में तो कोई दिक्कत नहीं, नदी तो अथाह है, नदी का तो कोई आदि ना अंत है, तो उसके साथ डेफिनेटली प्रॉब्लम है. बट पूल इज गुड, पूल इज ओके. सो इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड. पूल में 2 साइड्स होती है, एक शैलो जो कम गहरा होता है, 3-4 फीट पानी होता है उसमें, और एक जो ज्यादा गहरा होता है जिसमें 8, 9, 10, 12 फीट हो सकता है.
ठीक है। सो it was 9 feet at the deep and it was around 2 or 3 feet at the shallow. The drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. Water wings, आप लोगों ने देखा हो बच्चों को छोटे छोटे ट्यूब जैसे होते हैं जो कंधे पर हाथों पर पहना रहते हैं, एयर उसमें ब्लोन होती है जिससे कि वो डूब ना सके। ठीक, ये सब कुछ ले करके पहुंचे। I hated to walk. Okay, so this is only 5 pages because one page is the map of the Yakima River. अच्छा, तो ये यहाँ से घूम करके Yakima River से ऐसे आती है Mashka River. Yakima River is a tributary river of the Columbia River in eastern Washington, USA, the state named after the indigenous Yakama people. Okay. I hate to walk naked into and show my skinny legs. मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने, वो स्विमिंग शॉर्ट्स पहन करके चलना बहुत ही अजीब लगता था, एम्बैरेसिंग लगता था, शर्म आती थी मुझे बहुत, मेरे पतली पतली टांगे दिखाई पड़ती थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, बट किसी तरीके से मैंने कोशिश करी और मैं आगे बढ़ा। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। ये डर मेरा कब से, अब वो वही अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि जब 3 और 4 साल के थे, 3 या 4 साल के, तब ये कहानी हुई थी। He and I stood together in the surf. I hung up onto him. Yes, the waves knocked me down and swept me over. I was buried in water and my breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. लेकिन मेरे अंदर वो डर घर कर गया था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. जैसे ही स्विमिंग पूल में जा करके मैंने स्विमिंग सीखना और पहली बार कदम रखा, पानी में मैं उतरा, इंस्ट्रक्टर से मिला, बाकी लोगों को देखा, मेरे साथ के लोगों को, कोलीग्स को, तो वही पुराना डर, वो पुरानी मेमोरीज मेरे अंदर वापस याद आने लगी। बट इन अ लिटिल व्हाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस, आई पैडल्ड विद माय न्यू वाटर विंग्स, वॉच द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। बाकी और लड़कों को देख देख करके उनकी तरह कि अच्छा ऐसे कर रहे हैं, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे होता है, हाथ पैर चलाना मैंने कुछ कुछ शुरू किया। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. 3-4-5 दिन ही हुए थे जब मैंने ये करना शुरू किया और मैंने देखा कि धीमे धीमे मुझे मजा आने लगा था। अब वो उतना सा डर मुझे नहीं लग रहा था और अभी 4 या 5 दिन ही हुए थे कि एक और अनहोनी मेरे साथ हो गई। I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the pool was still and the tilted bottom was as white as clean as a bathtub. मैं गया, पूल के किनारे बैठ गया, शायद अभी टाइम नहीं हुआ होगा, बाकी लोग आए नहीं थे, लेकिन मैं पूल के किनारे बैठा हुआ था। पानी एकदम शांत था, अंदर तक की नीचे तक की टाइल्स दिख रही थी, एकदम क्लियर था वाटर। ऐसा लगा कि जैसे कोई स्विमिंग पूल नहीं, कोई बाथटब है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इनटू अलोन, थोड़ा सा मैं डरा हुआ था अकेले अंदर कूदने के लिए, तो इसीलिए मैं किनारे पूल के, आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग when in came a big bruiser of a boy. लेकिन ज्यादा समय मुझे नहीं हुआ होगा कि तकरीबन एक 17-18 साल का लड़का ने मुझे पीछे से ब्रूज कर दिया। He had thick hair on his chest, उसके छाती पर घने बाल थे। He was a beautiful physical specimen, काफी फिजिकल स्पेसिमेन, काफी मतलब बड़ा खूबसूरत नमूना था। खूबसूरत नमूना का अंदर से मतलब बॉडी मसल्स उसके डोले शोले रहे होंगे काफी, हाँ। And with his legs and arms that showed rippling muscles, he yelled, "Hi, skinny! How do you like to be done?" और उसने अपने बॉडी दिखा करके आ करके हमसे कहा कि यार टिंगू कैसे हैं, सुखे क्या हो रहा है, बतख बनोगे? And with that he had picked me up and tossed me into the deep end. और इतना कहते कहते उसने मुझे उठाया और उठा के छत से गहराई वाले हिस्से में फेंक दिया। I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. मैं बैठे बैठे पानी में छपाक से गिरा, पानी मेरे अंदर चला गया, मैंने पानी पी लिया और मैं बिल्कुल पानी की स्विमिंग पूल की गहराई तक पहुंच गया। I was frightened but not yet frightened out of my wits. On the way down I planned when my feet hit the bottom I would make a big jump
come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the swimming pool. मैंने सोचा कि मुझे कम से कम पैडल करना तो आता है, जैसे ही मैं नीचे जमीन तक पहुंच जाऊंगा जोर से धक्का मारूंगा और ऊपर आकर के जल्दी से छप 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 करके मैं निकल जाऊंगा, यहाँ से किनारे चल जाऊंगा। मैंने ऐसा सोचा तो मैं जितना नीचे जा रहा था उससे मैंने अपने आप को और नीचे जाने दिया कि जमीन को टक्कर मारूंगा तो ऊपर आ सकूंगा। इट सीम्ड अ वेरी लॉन्ग वे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बड़ा लंबा रास्ता लग रहा था। Those 9 feet were more than 9 फीट का स्विमिंग पूल ऐसा लग रहा था कि धीमे धीमे जैसे जैसे नीचे जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि 90 फीट का है। बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और इससे पहले कि मैं जमीन तक पहुंचता मेरे पूरे लंग्स में पानी भर चुका था और मैं जमीन तक बिल्कुल पहुंच गया था। और बट माई फीट, when my feet hit the bottom, I summoned all my strength and made that I thought was a great spring towards. I imagined I would do bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing. इन्होंने बहुत जोर से जमीन को टक्कर मारी। इन्होंने सोचा कि ये खसक करके उससे ऊपर आ जाएंगे और किसी तरीके से जैसे पॉप से एक कॉर्क, शैंपेन की बोतल की कॉर्क पॉप से उछल के बाहर आ जाती है, वैसे ही मैं भी बाहर आ जाऊंगा उछल के। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने आंखें खोल के देखा और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पानी के अंदर आंखें खोल के भी ठीक से ऑब्वियस की बात है क्या दिखाई देगा। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, पानी अब थोड़ा सा हल्का सा पीलापन पानी में आ चुका था। स्विमिंग पूल में रहता है, केमिकल्स वगैरह क्लोरीन काफी डालते हैं वो लोग उसे क्लीन करने के लिए। बट आफ्टर 6, 7, 8, 10, 15 days it starts to turn yellowish. I grew panicky. I reached up to it as if to grab a rope and my hand clutched at only water. मुझे लगा कि कोई रस्सी उससी पकड़ लूं, लेकिन मेरे हाथ सिर्फ पानी को ही पकड़ रहे थे। I was suffocating. I tried to yell but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water but not my mouth. I flailed at the surface of the water. Flailed. What is the meaning of flailed? I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. Flailed means trying to do something but is still not able to do. करने की कोशिश करना लेकिन कर ना पाना, जिसको कहते हैं कि ट्राई करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाई। And he swallowed and choked. फिर कुछ और पानी इनके अंदर चला गया। I tried to bring my legs up but they hung up as dead weights, paralyzed and rigid. मैंने अपने पैरों को ऊपर ले आने की कोशिश की लेकिन वो एकदम ऐसा लग रहा था कि they are dead, they don't have got any life into them. A great force was pulling me under. I screamed. मैंने चिल्लाने की कोशिश करी, ऐसा लगा कि कोई मुझे नीचे खींच रहा था। मैं नीचे बढ़ता ही जा रहा था, बहता ही जा रहा था। बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ पानी ने मेरी आवाज सुनी। आई स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और फिर से मैं जितना थोड़ा बहुत भी ऊपर में उछल करके आया था वापस से फिर मैं बॉटम की तरफ, सतह की तरफ डूब कर खसक कर जाने लगा। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सटेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स। जैसा कि सपनों में किसी एक एकदम इररेसिस्टिबल फोर्स से लड़ने की हम कोशिश करते हैं, उतनी ताकत मैंने पूरी ताकत झोंक करके पूरी अपनी ताकत लगा करके कोशिश करी। बट आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रॉब्ड, आई वाज गेटिंग डिजी। बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी, आई वुड spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. फिर से मैंने वैसे ही सोचा कि एक बार जमीन तक पहुंच जाऊं, फिर ठोकर मारूंगा, फिर उछल के बाहर आ जाऊंगा। But I would lie flat on the water and strike out with my arms and thrash with my legs and then I would get to the edge of the pool and be safe. और मैंने कहा कि मैं जल्दी से पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा, इस तरीके से कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा, जल्दी से तैर करके किसी तरीके से हाथ पांव चला करके वहां तक पहुंच जाऊंगा। I went down and down and down and down and endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. And then sheer stark terror seized me, terror that no understanding. फिर एक अचानक से डर ने मुझे घेर लिया, समेट लिया। ऐसा लगा कि कोई डर, कोई डेथ वॉरियर, कोई आत्मा, कोई मौत खुद ही खड़े होकर के मेरा इंतजार कर रही है, मुझे अपने पास बुला रही है। और वो डर वो बढ़ता गया, वो टेरर बढ़ता गया। एंड नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट।
और कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी लेडी उस चीज को, उस डर को नहीं महसूस कर सकते जब तक कि उन्होंने स्वयं खुद से वो डर महसूस ना किया हो. And who has not experienced it, I was shrieking underwater, I was paralyzed underwater and stiff and rigid with fear. And even the screams in my throat were frozen, only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. सिर्फ मेरे हार्ट और सिर्फ मेरी हार्ट बीट से ऐसा लगा कि जिसने कहा कि नहीं, किसी तरीके से मैं अभी एक जिंदा हूं. And then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. और फिर से मेरे अंदर वही ख्याल आया कि नहीं, मुझे जंप करना है. जैसे ही मैं सतह तक पहुंचूंगा मैं जंप करूंगा. At last I felt the tiles under me. मुझे पैरों में टाइल्स महसूस हुई. मैं जमीन तक पहुंच गया था, स्विमिंग पूल के बॉटम तक पहुंच गया था. My toes reached out as if to grab them. मैंने अपनी उंगलियों से, पैर की उंगलियों से उन्हें पकड़ने की कोशिश करी. I jumped with everything which I had. जितनी भी ताकत, जितनी भी हिम्मत, जितना भी करेज मेरे अंदर बचा था, वो सब कुछ मैंने लगा दिया उस जंप को ऊपर आने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए. नहीं तो मेरे अंदर ये डर बन गया था कि आज तो मैं डूब करके मर जाऊंगा. बिल्कुल मैं मौत की कगार तक, डेथ की कगार तक पहुंच गया था. बट द जंप मेड नो डिफरेंस. लेकिन मेरे उछलने कूदने से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई एक इंच भी नहीं फर्क पड़ा. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी. आई लुक फॉर रोप्स, आई लुक फॉर raiders, I looked for water wings and nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me, and like a great charge of electricity, I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move and my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother, to call for father, but nothing and nothing happened. So आज के लिए बस इतना ही. In the next class we are going to continue. क्या हमारे डगलस साहब पानी से बाहर निकल पाएंगे, क्या खुद से निकल पाएंगे, या खुद वहीं डूब जाएंगे, डूब करके मर जाएंगे और कहानी वहीं खत्म हो जाएगी. क्या वो स्विमिंग का डर, का जो डर है, डूबने का डर, वो उनके अंदर से कभी निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो इस स्टोरी का पार्ट 2. थैंक यू वेरी मच एंड यू हैव अ ग्रेट डे.